سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہوئی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تاؤفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیاء نبی کا تمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار کو بیٹھ کر اور خادم کو واپس دیکھ کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانہ میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزوں، آج کی تلاوتیں، آج کا کلام بہت خوبصورت شاندار ہے۔ خدا کا کلام تو سارا ہی خوبصورت ہے اور دل کو لبھاتا ہے اور دل کو خوشی فراہم کرتا ہے۔ آج جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں، خصوصی طور پر انجیل مقدس کی تلاوت، جس میں خدا یسوع مسیح اپنے شہر ناصرت میں آتے ہیں، اپنے گاؤں ناصرت میں آتے ہیں۔ یہ ناصرت وہ گاؤں ہے، وہ شہر ہے جہاں یسوع مسیح نے پرورش پائی تھی۔ یسوع پیدا بیت الحم میں ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح نے تربیت، پرورش، جوانی جو ہے اسی شہر میں گزاری تھی۔ جوان اسی شہر میں ہوا تھا، اسی شہر میں حضرت یوسف کا اور مریم کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اسی شہر کے عبادت خانہ میں جب خدا یسوع مسیح 30 سال کے ہو گئے تو انہوں نے اپنی منادی کا آغاز کیا تھا، اور اسی شہر کے عبادت خانہ میں خدا یسوع مسیح آج انجیل مقدس کے مطابق موجود تھے، اور انہیں اشعیاء نبی کا تومار، اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، جہاں پر یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئوں کو
مقبول کو مشتہر کروں۔ خدا یسوع مسیح نے ناصرت کے اس عبادت خانہ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، اپنے ہونے کا مقصد بیان کر دیا، خدا کے کلمہ کے مجسم ہونے کا مقصد اور مفہوم بتا دیا، ارادہ بتا دیا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا آسمان سے زمین پر آیا کس لیے ہے، مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، کیا کرنے آیا ہے۔ آج یسوع مسیح جب ناصرت کے عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، اشعیا نبی کا تمہار کھولتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ آج یہ نوشتہ کیونکہ میرے ہونے سے، میرے وجود سے، میری ذات سے اب غریبوں کو خوشخبری ملنے والی ہے، اب مسکینوں کو خوشخبری ملنے والی ہے، اب کچلے ہوں کو آزادی ملنے والی ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ 700 سال پہلے اشعیا نبی نے جس بات کا ذکر کیا تھا، آج وہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح ناصرت کے شہر میں آتے ہیں، اور ناصرت کا پہلے بھی بیان کیا گیا کہ ناصرت کے لغوی معنی، اس شہر کے، اس گاؤں کے لغوی معنی ہیں کہ خدا مدد کرتا ہے، خدا سہارا بنتا ہے، زرخیز زمین ہے یہ۔ اور ناصرت نئے عہد نامے کے بہت سارے مشہور شہروں میں سے ایک شہر، بیت لحم شہر مشہور ہے، یروشلم شہر مشہور ہے، اور کانا گلیل پچھلے اتوار ہم نے سنا، کانا کا شہر مشہور ہے، اور مغدلہ کا شہر مشہور ہے، بیت صدا کا شہر مشہور ہے، کفرنہوم کا شہر مشہور ہے، کیسریا فلپی کا شہر مشہور ہے۔ انہی مشہور شہروں میں سے ناصرت کا شہر بھی بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ پاک خاندان کا شہر ہے، جہاں پاک خاندان نے قیام کیا، جہاں مریم اور یوسف نے قیام کیا، جہاں یسوع کی تربیت ہوئی، یسوع کی پالنا ہوئی، یسوع کی نشو نما ہوئی، یسوع قد و قامت میں اور خدا کی حکمت اور خدا کے روح میں بڑھتا اور ترقی کرتا گیا، جیسے کہ لوکا انجیل نویس بیان کرتا ہے کہ وہ ناصرت میں آیا اور اپنے والدین کے تابع رہا۔ ناصرت عزیزو بہت اہم شہر ہے۔ اس شہر میں ہی مقدسہ مریم کو فرشتے کی بشارت ہوئی تھی کہ تو خدا کے اکلوتے بیٹے کی عزیز والدہ بنے گی۔ اسی شہر میں، اور عید بشارت بھی پھر ہم مناتے ہیں، اسی شہر میں ایک کنواں ہے جہاں مقدسہ مریم صبح سویرے پانی بھرنے جایا کرتی تھی، اور کلام مقدس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسی کنویں سے خدا کا فرشتہ جو ہے اس کنویں پر مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا، اور مقدسہ مریم سے یہ مکالمہ اسی کنویں پر شروع ہوا، اور پھر یہ گھر تک پہنچا، اور مقدسہ مریم جو ہے، پھر مقدسہ مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ناصرت کا شہر عزیزو بہت مشہور ہے۔ اسی ناصرت کے شہر میں آج بھی یوسف بڑائی کی دکان ہے، جہاں وہ ترخان کا کام کیا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا گرجا گھر حضرت یوسف کے نام سے بنایا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے، اور اسے حضرت یوسف کا گرجا کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو، اسی شہر میں وہ مدرسہ بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم حاصل کی۔ یسوع مسیح پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی تھی ناصرت کے اسی شہر میں۔ تو بے شمار خوبیاں ہیں۔ 30 سال یسوع نے اس شہر میں گزارے تھے، اور یسوع کی ذات سے منسلک بہت ساری باتیں، بہت سارے کام اس شہر میں ہوئے تھے۔ اور یسوع مسیح جب 30 سال کا جوان ہو کر اسی شہر کے عبادت خانہ میں آتا ہے، اور اشعیا نبی کا صحیفہ، اشعیا نبی کا تمہار کھولتا ہے، اور وہ مقام پڑھتا
खुदावन मुझ पर है। 700 साल पहले ईशाया ने पेशन गोई कर रखी थी कि खुदा का मसीह, खुदा का वंशु और खुदा का प्यारा आएगा और ऐसा माहौल कायम कर देगा, ऐसा एक जो है दुनिया को कायम करेगा कि जहां पर गरीबों को, मस्कीनों को खुदा की खुशखबरी की मुनादी की जाएगी और मुनादी सुनाई जाएगी। इस पर हम दोबारा बात करते हैं। पहली तिलावत आपने सुनी है। पहली तिलावत में किस का जिक्र आया? हाँ जी, अज़रा का जिक्र सुना था आपने, और नहमीया की किताब से नहमीया और अज़रा, ये दोनों बड़े खूबसूरत नाम हैं और कलामे मुक़द्दस में पुराने नामे में इनकी किताबें आगे पीछे आती हैं। अज़रा और नहमीया की किताबें आगे पीछे जुड़ी हुई किताबें हैं और इन दोनों का माहौल और जो है तारीखी पस मंजर, माशरती पस मंजर, सियासी पस मंजर एक जैसा है, मजहबी पस मंजर एक जैसा है। अज़रा फिक्का है। फिक्का का मतलब मैंने कई दफा बताया, जो खुदा के कलाम के उस्ताद होते हैं, माहिर होते हैं, शरीयत के माहिर, शरीयत के आलम को फिक्का कहते हैं। फकीह फरीसियों का जिक्र सुना हमने जिल मुक़द्दस में। जो फकीह थे वो खुदा के कलाम के माहिर उस्ताद थे। तो ये अज़रा जो है ये शरीयत का उस्ताद, शरीयत को जानने वाला, पढ़ने वाला और सुनाने वाला था। और नहमीया की किताब में से हमने पहले तिलावत सुनी कि अज़रा को बुलाया जाता है और वो एक मंबर पर खड़ा होकर शरीयत की किताब पढ़ता है। और ये वाक़या है, ये वाक़या उस वक्त का कि जब बनी इस्राएल के लोग 70 साल बाद यरूशलेम आए थे। 70 साल बाद जलावतनी काट कर, बाबल की कैद काट कर, बाबल की असीरी काट कर, नबूकदनेस्सर बादशाह की असीरी काट कर 70 साल बाद बनी इस्राएल के लोग यरूशलेम आए थे। और उनके लिए इस 70 सालों में कोई कलाम पढ़ने वाला नहीं था, कोई कलाम के मुतालिक बताने वाला नहीं था, कोई शरीयत का उस्ताद नहीं था, कोई माहिर नहीं था। तो ये अज़रा जो है ये मिंबर पर खड़ा होकर खुदा का कलाम खोलता है, शरीयत की किताब खोलता है और लिखा है कि सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े खड़े खुदा का कलाम पढ़ा। लोग भी खड़े थे। कौन है आज जो सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े होकर कलाम सुन सकता है और कोई पढ़ सकता है? और लोग कलाम को सुनकर धाड़े मार कर रोते थे कि 70 साल गुजर गए कि बनी इस्राएल में और यरूशलेम में खुदा का कलाम सुनाने वाला कोई नहीं था। 70 साल बाद एक मरतबा फिर खुदा की शरीयत की किताब खोली गई है। लोग रोते थे, धाड़े मार कर रोते थे। तो अज़रा ने कहा, मत रो, आज ही तुम्हारी निजात का दिन है, खुशी मनाओ, शादमानी करो कि खुदावंद कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो अपने कलाम की बरकत हमें हमेशा अता करता है और वो हमारे साथ रहता है और हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और फिर कहा कि तुम ईद मनाओ, खुशी करो कि यरूशलेम की रौनकें दोबारा बहाल हो गई है। अब शरीयत का कलाम दोबारा से पढ़ा जाया करेगा। अब लोगों को खुदा का फजल और बरकत दोबारा से मिलेगी और लोग जो है खुदा से बरकत पाएंगे। अजीजों, तारक में मैंने बयान किया कि आज पाक कलीसिया बाइबल मुक़द्दस का इतवार भी मनाती है। कलाम मुक़द्दस की अहमियत और इसी कलाम मुक़द्दस की अहमियत पर मबनी आज की तलावतें हैं कि अज़रा ने सुबह से लेके दोपहर तक खुदा का कलाम पढ़ा। लोगों ने गौर से सुना, खड़े होकर सुना। इसलिए जिल मुक़द्दस जब पढ़ते हैं तो सारी जमात खड़ी हो जाती है, ताज़ीम में खड़ी होती है, अकीदत में खड़ी होती है, एहतराम में खड़ी होती है, खुदा की मोहब्बत में खड़ी होती है, खुदा का रहम और फजल को हासिल करने के लिए खड़ी होती है। इसलिए खड़े होकर खुदा का कलाम सुना और पढ़ा और खुदा से बरकत और फजल हासिल
किताबें तहरीर की हैं, एक तो लूका के मुताबिक अंजील है और दूसरा रसूलों के अमाल की किताब। ये पेशे के लिहाज से तबीब है, मेडिकल डॉक्टर तबीब है। इसलिए लूका की अंजील में आप सुनेंगे कि जब वो खुदा यीशु मसीह के किसी मौजज़े का, शफा के मौजज़े का बयान करता है, तो फिर बड़ी तफसील के साथ बीमारी क्या है और उसको किस किस्म का मर्ज था और उस मर्ज की वजह से मरीज की हालत किस तरह की थी, इस तरह से वो तफसील से, क्योंकि डॉक्टर है, तबीब है, तो बीमार की बीमारी की हालत को बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। तो लूका अंजील नवीस शुरू कैसे करता है कि अफसरों ने ये कोशिश की कि किन बातों को यीशु की बातों को बातरतीब बयान करे। तो ए मोसेस ताउफलस, ये ताउफलस नामी एक शख्स को लिखा गया है। ए मोसेस ताउफलस, मैंने भी कोशिश की है कि उन बातों को जो यीशु ने की हैं बातरतीब तुझे बयान करूं। ताउफलस का मतलब है फ्रेंड ऑफ गॉड, खुदा का दोस्त, खुदा का प्यारा, या खुदा जिसको अपना दोस्त बनाए, या वो जो खुदा को अपना दोस्त बना ले। ताउफलस का लफ्ज़ मतलब ये है। और अंजील मुक़द्दस लूका में हमें ऐसा नजर आता है कि खुदा हर इंसान को अपना दोस्त समझता है और खुसूसी तौर पर उनको अपना दोस्त समझता है जो खुदा को प्यार करते हैं और खुदा के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और लूका की अंजील में खुदा दोस्त किसका है? खुदा गरीबों का, मस्कीनों का, कुचले हुओं का, बीमारों का, शफा के तालिबों का, कोड़ियों का, अंधों का, लंगड़ों का, मोहताजों का, गुनाहगारों का और मुहस्सिनों का खुदा दोस्त नजर आता है। तो अंजील नवीस बयान करता है कि ये अंजील लिखी ही उनके लिए गई है जिन्हें खुदा अपना दोस्त समझता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं, गुनाहगारों के लिए आया, गुनाहगारों के लिए आया। तो खुदा अपना दोस्त किन्हें समझता है? खुदा के प्यारे कौन हैं? खुदा के महबूब कौन हैं? वो जो दुदकारे हुए हैं, वो जो रद्द किए हुए हैं, वो जो मस्कीन हैं, वो जो गरीब हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का नस्मुलायन पेश किया, मंशूर पेश कर दिया। जैसे हमारे मुल्क में जब सियासी जमातें इलेक्शन आते हैं तो अपना अपना मंशूर पेश करें, हमारी जमात का मंशूर क्या है जी, हमारे लीडर का मंशूर क्या है। तो यीशु मसीह ने भी नासरत के इबादतखाना में खड़े होकर अपनी जात का नस्मुलायन पेश कर दिया कि रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया है, इसलिए उसने मुझे भेजा है, इसलिए कलमा मुजस्सम होकर तुम्हारे दरमियान आया है ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। मस्कीनों को जो खुदा के तालिब हैं, जो खुदा प्यार करते हैं या खुदा जिनको प्यार करता है, उनको खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बनाई दूं। एक जुमला है, और खुदावन के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। मुश्तहर करने का मतलब है आम करूं, उसका प्रचार करूं। ये खुदावन का साले मकबूल क्या था जी? खुदावन का साले मकबूल, ये बनी इस्राएल में अहबार की किताब में दर्ज है कि खुदावन का साले मकबूल हर 6 साल के बाद जो 7वां साल होता था, सबत का साल कहलाता था, खुदावन का साले मकबूल। और हर 49वें साल के बाद 50वां साल ये जुबली का साल कहलाया जाता था, ये भी खुदावन का साल मुकर्रर किया जाता था। इस साल होता क्या था? इस साल जितने भी कैदी होती है उन्हें रिहा कर दिया जाता था। और जो खेतों में काम करने वाले होते थे, जमींदारों के मजारे होते थे, उस साल जमींदार खुद खेती बाड़ी नहीं करते थे, बल्कि इन्हें जमीन दे देते थे, तुम अनाज उगाओ और तुम अपने लिए फसल पैदा करो। और अगर किसी पर कोई बोझ होता था, कोई कर्ज होता था, उसे माफ कर दिया जाता था और हर एक को आजादी मिलती थी, हर एक को खुशी मिलती थी, हर एक को खुशखबरी सुनाई जाती थी। ये खुदावंद का
आजादी का पैगाम दूंगा, हर वक्त ही खुशी का पैगाम दूंगा, हर वक्त ही मैं गरीबों और मस्कीनों के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आऊंगा। इसलिए अब इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आया हूं कि खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। मुश्तहर करना आम करना है, उसका इश्तिहार लगा देना है, उसे आम कर देना है, उसका प्रचार करना है। अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस का इतवार भी है और बाइबल मुकद्दस के बगैर हमारी इबादत हो नहीं सकती है। खुदा का कलाम है और ये कलाम सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, ये कलाम आपकी जिंदगी के लिए होता है, आपकी अखलाकी जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए, आपकी तरबियत के लिए होता है, आपके फायदे के लिए होता है, आपकी ईमानी ताकत और कुव्वत के लिए होता है। इसलिए खुदा के कलाम को प्यार करना ये बड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी की सबसे अलमहबूब किताब कलाम मुकद्दस होना चाहिए। आप जब घरों में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो कलाम को पढ़ा करें, कलाम को खोला करें। कई दफा ये कलाम हमारे अलमारियों में बंद नजर आता है या छुपा हुआ, ढपा हुआ, कपड़ों में लिपटा हुआ ही रह जाता है और कभी 6 माह बाद, कभी 1 माह बाद, कभी साल बाद खोलते हैं। अजीजों, हर रोज खोला करें कलाम मुकद्दस को, हर रोज खोला करें, हर रोज उससे हिदायत पाया करें, हर रोज उससे बरकत पाया करें, हर रोज उससे कुछ ना कुछ पढ़ा करें। अभी पहले तिलावत में हमने सुना, सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े होकर कलाम सुना, कलाम को सुनकर बरकत पाई और धाड़े मारकर रोते थे कि आज खुदा का कलाम हमारे लिए खोला गया है, आज खुदा यीशु मसीह का कलाम आपके लिए भी खोला गया है। नासरत के इबादत खाने में खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का नस्ब लाइन पेश कर दिया कि मैं इसलिए आया हूँ। अजीजों, आज हमने सोचना है, हम यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के नाम पर बपतिस्मा हासिल किया, इस्तिकाम का साक्रामेंट हासिल किया, पाक शराकत हम हासिल करते हैं। यीशु के नाम पर ईमान लाने से हम खुदा का कलाम सुनते हैं, तो हमें भी अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मंशूर तो बनाना चाहिए कि मेरी जिंदगी से यीशु मसीह की कौन सी खूबियां जाहिर होंगी। यीशु मसीह ने खुदा की खूबियां अपनी जात से जाहिर की कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजादी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बनाए दूं। हम भी खुदा के मंसूब हैं, हमें भी मसा दिया गया है बपतिस्मा के पाक पानी से और बपतिस्मा के पाक तेल से हम मसा किए गए हैं। हमारी जिंदगी का नस्ब लाइन क्या है, हमारी जिंदगी का मंशूर क्या है? क्या हमारी जिंदगी का मकसद वाकई दूसरों के लिए खुशखबरी बनना है? तो फिर हम सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें सही रास्ता तलाश करना है, ढूंढना है। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदा के वसीला से आमीन।